Yes, good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Okay. So, Yes, sir. actually, today departmental meeting is going on some topic. So I was busy there. That's why I have joined late. So can you summarize what we have done till now for the two-dimensional element? Anyone? कोई भी आप में से जरा बताएं कि अब तक हम क्या कर चुके हैं टू डायमेंशनल एलिमेंट में। कोई भी बताइए। What we have done till now? चलो ये बताओ, व्हाट इज लैग्रेंज एलिमेंट? व्हाट इज ए लैग्रेंज एलिमेंट? व्हाट इज ए लैग्रेंज एलिमेंट? कोई भी प्रत्युष आप बता सकते हैं व्हाट इज ए लैग्रेंज एलिमेंट? सुन पा रहे हैं मुझे? नहीं, मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है आपको? अंकुर चौहान सुन पा रहे हैं मुझे? Am I audible? चैट बॉक्स में लिख दीजिए if I am audible. What is a Lagrange element? It is a 9-noded element. What is the difference between 8-noded rectangle and Lagrange element? The Lagrange element is having one central node. Only this is the difference. So just see this file, and I will upload this file in your portal. So you can download it, this file from there. So I think this question we have already done. Yes or no? Coordinates x and y at r equal to 2/3 and s equal to 1/6 for element shown. We have done this question, yes or no? Please respond. आकाश कटवानी, क्या हमने क्वेश्चन कर चुके हैं क्लास में पहले? मुझे तो याद आ रहा है कि हम इसे कर चुके हैं. There are 6 nodes. So there are 6 shape functions. पहले तो ये बताओ, आप मेरी आवाज आ रही है आपको कि नहीं आ रही है? Am I audible? हेलो सर. हाँ, यस. हाँ यस सर, वो सर थोड़ा बिजी था तो कोई बात नहीं. हाँ, आ रही है, आवाज आ रही है सर. आवाज आ रही है ना? तो मैं एक न्यूमेरिकल आप देखिए, ये न्यूमेरिकल वी हैव ऑलरेडी अटेम्प्टेड है ना. इन दिस न्यूमेरिकल देयर आर 6 shape functions, so we have calculated the shape functions by their formulas, putting the r and s value. We have calculated the values of those. So n1 to n6 are available, x1 to x6 are available. Then we have calculated the coordinates for general point. General point means a point where r equal to 2/3 and s equal to 1/6. These are the area coordinates. So this question we have already done. These are the coordinates for the first point. Node 1, the coordinates are 0, 0. Node 2, the coordinates are 2, 0. These are the coordinates also mentioned in the figure also. So this question we have done. This question also we have done. 3 noded triangle. So yes sir, three functions RST we have also done. So I am proceeding. We have also taken some idea of Jacobian in the last class. So Jacobian है ना, Jacobian हमने कैलकुलेट भी किया था लास्ट क्लास में. Jacobian is needed for finding the still in the element. And
four noded rectangle, these all shape functions we have derived n1, n2, n3, n4, and this is a shortcut. I will send you this file by 4 1 plus RIR into 1 plus SIS is a shortcut for the four noded. Then we have worked out on the 8 noded element. So we have calculated, and also the shortcut is mentioned here. First shortcut is for corner nodes, and second shortcut is for the middle nodes that we have covered already. So I'm just leaving it. Hey, what is this? This question we have done or not? बोलिए कैसा है ये, क्या है, मतलब कैसा एलिमेंट है ये? सर ये लीनियर है. हाँ, it is a one dimensional element, linear element. Only two nodes are there. So for the first node, सर ऐसा क्वेश्चन किया है हमने, मतलब हाँ we have done है ना, we have done. तो अभी जो एग्जाम होगी उसमें मॉड्यूल 1 से भी सिलेबस आएगा है ना, मॉड्यूल 2 से भी आएगा ही आएगा, मॉड्यूल 1 से भी आएगा. सो थोड़ा रिवीजन उसका भी करते रहिएगा वन डायमेंशनल एलिमेंट का. तो जस्ट एक रिवीजन के लिए डाला हुआ है ना. x1 गिवन है, x2 गिवन है, तो आपको जो है जीटा फाइंड करना है x इक्वल टू 11 के लिए. यस, ठीक है ना, दिस इज द क्वेश्चन. तो x इक्वल टू ये फॉर्मूला होता ही है, x 11 दे रखा है, n1 1 माइनस जीटा बाई 2 होता है फर्स्ट शेप फंक्शन, and this is the second shape function for the linear. Just putting the value zeta is minus 0.2. सिंपल है. इसी में एक और पार्ट है, फाइंड x for zeta equal to minus 0.2. उल्टा कर दिया है, अभी जीटा minus 0.2 आया है तो minus 0.2 के लिए x क्या होगा, तो 11 आंसर आना चाहिए. यस, 11 के लिए minus 0.2 था, तो minus 0.2 के लिए x क्या होगा, 11 होगा. तो देखिए 11 आंसर आया है. तो जस्ट रिवर्स क्वेश्चन है, इसमें x फाइंड करना है, जीटा दे रखा है. एक और पार्ट है, फाइंड x फॉर जीटा इक्वल टू 0. तो जीटा इक्वल टू 0 मिडिल पॉइंट होता है ना, और 20 का मिडिल पॉइंट क्या हो जाएगा, इट इज 5 एंड 20. 5 और 20 का मिडिल पॉइंट क्या होगा, 12.5. 12.5 है ना. तो वही आंसर आना चाहिए जीटा इक्वल टू 0 के लिए, है ना. जीटा -1 जीटा +1, तो मिडिल पॉइंट इज जीटा इक्वल टू 0. सो x इज 12.5. कैसा एलिमेंट है x1 x2 x3, ये बताइए कैसा एलिमेंट है. सर ये क्वाड्रेटिक. So it is a one dimensional element, but it is quadratic. It is quadratic. So in this quadratic element, for the left node zeta is -1, right node zeta is +1, and the middle node zeta equal to 0. Yeah. So find x for zeta equal to 0. तो x कैसे निकालोगे, वही तरीका, n1 x1 n2 x2 n3 x3. तो ये 12.5 अगेन मिडिल नोड है, तो 12.5 भी आ गया. ठीक है. सेफ फंक्शन क्या होंगे हमारे केस में, अब ये पहला होगा हाफ जीटा जीटा -1, ये लास्ट नोड का सेफ फंक्शन है, हाफ जीटा जीटा +1, और 1 माइनस जीटा स्क्वायर ये मिडिल नोड का सेफ फंक्शन है. के बाद ये सब वही वन डायमेंशनल ही चल रहे हैं. अब है 9 नोडेड क्वाड्रिलेटरल एलिमेंट, मींस इट इज ए लैग्रेंज एलिमेंट ना, इट इज ए लैग्रेंज एलिमेंट. So in this Lagrange element, there are 9 shape functions. So in the last class we have done it. Very simple. N1 is L1 zeta into L1 eta. तो वही हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल में ये फर्स्ट नोड है, वर्टिकल में भी ये फर्स्ट नोड है. तो फर्स्ट नोड का सेफ फंक्शन इनटू फर्स्ट नोड का सेफ फंक्शन ईटा के फॉर्म में, और फर्स्ट नोड का सेफ फंक्शन जीटा के फॉर्म में. तो बस मल्टीप्लाई कर दिया, आपको आंसर मिल गया जीटा n/4 1 माइनस जीटा इनटू 1. तो ये तो हमने लास्ट क्लास में किया था, आप लोगों ने स्वयं ही बताया था, है ना. आप लोगों को अच्छे से आ गया था ये n2 n3 n5 n6 n7 n8 n9 तक हमने कर लिया था पूरा, है ना. ये एक डायग्रामेटिक दिखा रखा है कि किसका क्या सेफ फंक्शन होगा. तो ये जरा शॉर्ट में है, n1 से लेके n9, दिस इनटू दिस है, हर जगह 2 सेफ फंक्शन का मल्टीप्लाई हो रहा है ना. दिस इनटू दिस, दिस इनटू दिस, दिस इनटू दिस, है ना. सेंट्रल में दिस इनटू दिस, तो उसी को समराइज कर दिया है. बताइए इस डायग्राम से आप क्या समझ रहे हैं.
This diagram is showing the area coordinates. Area coordinates. So 1 0 0 0 1 0 0 is the area coordinate for the node number 1. So here r equal to 1, s equal to 0, t equal to 0. Okay. तो ये पूरा ट्राइंगल इस P पॉइंट से 3 एरियाज में डिवाइड हो गया, A1, A2, A3. तो A1 अपॉन A मीन्स होल ट्राइंगल एरिया, दैट इज R. R का मतलब है एरिया A1 डिवाइडेड बाई टोटल एरिया. S मीन्स A2 by A, T मीन्स A3 by A, और इन तीनों को प्लस करेंगे तो A1 प्लस A2 प्लस A3 डिवाइड बाई A, और A1 प्लस A2 प्लस A3 A के इक्वल है, तो A by A मीन्स 1. तो एरिया कोऑर्डिनेट का समेशन हमेशा 1 आता है, चाहे ये पॉइंट कहीं पर भी लाई करे, ट्रायंगल के अंदर या ट्रायंगल की बाउंड्री लाइंस पर, ये कहीं भी लाई करे, इसका आंसर हमेशा 1 आता है. तो ये सब हम कर चुके हैं. फिर हमने सेव फंक्शंस निकाले थे, तो n1 इक्वल टू r, n2 इक्वल टू s. अब ये किससे निकाला है, ये कौन सी मेथड से निकाला है? ये सेव फंक्शन निकाला है, दो मेथड है आपके पास, एक सेरेंडिपिटी और एक है लैग्रेंज अप्रोच. तो ये लैग्रेंज अप्रोच से इन्होंने कैलकुलेट किया है. सेरेंडिपिटी में तो स्केल फंक्शन यूज होता है, तो आंसर्स वही आ गए RST 3 नोडेड के लिए. इसके बाद ये जो है ट्राइंगल में 6 नोडेड है, तो 6 नोडेड में 6 सेव फंक्शन है. पहला सेव फंक्शन क्या होता है? एनीवन व्हाट इज फर्स्ट सेव फंक्शन? फॉर्मूला याद है? रिमेम्बरिंग what is n1 in 6 noded triangle? Sir, n1 is 2r into r into 2r minus 1. Yes, r into 2r minus 1, then s into 2s minus 1, then t into 2 minus 1, and what is n4? 4rs, and n5 is 4st, and n6 is 4rt. So this part also we have done. ये फाइल में अभी आपको व्हाट्सएप कर दूंगा या पोर्टल पे डाल दूंगा. n6 n3 सब आ गया आपका. अब इसी को सेरेंडिपिटी से भी दिखाया हुआ है, तो ये फाइल आपको हेल्प करेगी चीजों को रिवाइज करने में एग्जाम के टाइम पर. तो अच्छे से कर लीजिएगा इसको देख के, और समझ में आपका डिटेल में आ जाएगा. इक्वेशन ऑफ द लाइंस ये डायग्राम में आपको और बेहतर तरीके से है. दिस लाइन इज r इक्वल टू 0, दिस लाइन इज r इक्वल टू हाफ. ठीक है. सिमिलरली दिस लाइन इज s इक्वल टू 0, दिस लाइन इज s इक्वल टू हाफ. अब इसी में बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं जो ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में या मल्टीपल चॉइस के फॉर्म में आपसे पूछे जा सकते हैं. बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं. मतलब व्हाट विल बी द सेव फंक्शन ऑफ पॉइंट नंबर नोड नंबर 4 इन 6 नोडेड ट्रायंगल, एक यही क्वेश्चन हो सकता है. या व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ लाइन 2 3. 4 ऑप्शन दे दिए, t इक्वल टू 0, r इक्वल टू 0, s इक्वल टू 0, आप नन ऑफ देम, कोई भी एक आपको लेना है. तो ढेर सारे इसमें से क्वेश्चंस बन जाएंगे. अच्छे से कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा. ये क्या है आप बताओ? व्हाट इज दिस? आपके सामने ये क्या दिखाया गया है? एलिमेंट है ये 4 नोडेड रेक्टेंगल है ना. 4 नोडेड रेक्टेंगल. एक ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी हम लोग शायद क्लास में कर चुके हैं. फॉर द ट्रायंगुलर एलिमेंट शोन द नोडल वैल्यूज ऑफ द डिस्प्लेसमेंट्स आर u1 v1 u2 v2 u3 v3 ऑल आर गिवन. ये सर किया था ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं. जनरल पॉइंट P22 है, तो उस पॉइंट के लिए हमको क्या निकालना था? डिस्प्लेसमेंट निकालना था, है ना. तो वी हैव ऑलरेडी डन दिस क्वेश्चन. इसका सोल्यूशन यहाँ पर है. ये फाइल आपको हेल्प करेगी कई चीजों में. तो n1 इक्वल टू r, ये सबसे फंक्शन हो गए. हमने RST की वैल्यू को फाइंड किया है. ये RST वैल्यू फाइंड करने के बाद में फिर हमने इसमें u और v फाइंड किया, डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर लिया है. डिस्प्लेसमेंट के बाद फिर हम थोड़ा सा इसमें हल्का सा डिस्क्रिप्शन उसके बारे में भी है, स्ट्रेन के बारे में, है ना, जिसमें जैकोबियन आता है. तो del u by del x कुछ निकाला गया है ना. तो u बराबर n1 u1 n2 u2 n3 u3 होता है. तो del y del x हर एक टर्म में लग गया है. फिर
डेल एन वन बाई डेल एक्स को डेल एन बाई डेल जीटा इंटू डेल जीटा बाई डेल एक्स लिख दिया है, u1 बाहर है ना, और ईटा के फॉर्म में भी ले लिया, पार्शियल डेरिवेटिव है तो दोनों के रेस्पेक्ट में लिया है। तो ये सब भी हम कर चुके हैं, जैकोबियन तक आपको बता चुके हैं। ये सब करके हमने जैकोबियन निकाला था, दिस इज द जैकोबियन ना। तो जैकोबियन को याद रखिए, जैकोबियन पे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है ना। 4 मैट्रिक्स दे दिया, उसमें से एक मैट्रिक्स आपको छांटना है, तो विच इज द राइट जैकोबियन मैट्रिक्स, है ना। So Jacobian is del x by del zeta, del y by del zeta, del x by del eta, del y by del eta। अच्छा, जीटा ईटा से कंफ्यूज मत होना, आर और एस हो चाहे जीटा ईटा हो, है ना, बात एक ही है। तो शायद जब हमने क्लास ली थी तो हमने आर और एस से किया हुआ है, यहाँ इस फाइल में ये जीटा ईटा से कर रखा है। तो जीटा विल बी रिप्लेस्ड बाय आर, del x by del r, del y by del r, del x by del s, del y by del s। So this is the Jacobian, correct? So del x by del zeta, del x by del zeta, इसके बारे में बताओ, इसको कैसे निकाल। तो अभी एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें हम इस जैकोबियन को कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं पहले, है ना। मेक ए ट्रायंगल, आप सब अपनी कॉपी में एक ट्रायंगल बना लें, ठीक है। एक ट्रायंगल बना लीजिए, उसमें पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट मैं पीपीटी में एक डायग्राम में इसको भी स्टॉप शेयर कर रहा हूँ फिलहाल, और मैं एक पीपीटी शो कर रहा हूँ आपको। This is PPT. Yes, PPT is visible in full mode. It is visible now. Yes, sir. So in this PPT, I am giving you one question जिसमें कि आपको जैकोबियन निकालना है ना। तो एक ट्रायंगल आपको गिवन है, the triangle is a 3-noded triangle, it is a 3-noded triangle। ऐसे बना लेते हैं इसको, that this is a triangle। So this is node number 1, its coordinates are 1.5, 2। Second, node 2, the coordinates are 7, 3.5, and third node is, the coordinates are 4, 7। So these are the 3 coordinates, okay। तो अब इस ट्रायंगल के लिए आपको निकालना है जैकोबियन। क्या निकालना है? जैकोबियन। तो जैकोबियन आप कैसे निकालोगे ये बताओ। तो यहाँ पर एक कोई पॉइंट भी दिया हुआ है इसमें, दिस इज 3.85, 4.8, दिस इज आल्सो गिवन। तो अब आपको क्या निकालना है? जैकोबियन निकालना है, जैकोबियन। और जैकोबियन का मैट्रिक्स क्या होता है? डेल एक्स बाई डेल आर, और बताओ डेल वाई बाई डेल आर, नहीं डेल एक्स बाई डेल एस, डेल एक्स बाई डेल एस, है ना। फिर से लिख जैकोबियन बाई, बोलिए डेल एक्स बाई डेल आर, एंड डेल एक्स बाई डेल एस, उसके बाद नीचे क्या है बोलो? डेल वाई बाई डेल आर। हाँ जी, हाँ सर, डेल वाई बाई डेल आर, हाँ डेल वाई बाई डेल एस। हाँ गलत, देखो पहले एक्स का टर्म आ गया डेल एक्स बाई डेल आर, उसके बाद यहाँ वाई का टर्म आएगा डेल वाई बाई डेल आर आएगा। यस सर, ये सर डेल आर आएगा, डेल वाई बाई डेल आर आएगा, है ना। ये हम सही लिख रहे थे, ध्यान रखिए गलती मत करना। डेल एक्स बाई डेल आर, डेल वाई बाई डेल आर, आर के रेस्पेक्ट में एक्स और वाई आएगा पहले, फिर एस के रेस्पेक्ट में एक्स और वाई आएगा, एक्स और वाई, ठीक है। ये जैकोबियन की मैट्रिक्स है। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, इन सारी कैलकुलेशंस को यदि हम वैसे करें तो टिपिकल टेबल के फॉर्म में करेंगे तो
थोड़ा इजी पड़ता है. सो वी हैव प्रमोट द टेबुलर कैलकुलेशंस. टेबुलर कैलकुलेशंस. तो देखो कैसे करेंगे टेबुलर कैलकुलेशन. सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं इन कोऑर्डिनेट्स को. तो x करके कॉलम बनाते हैं और उस x कॉलम में तीनों वैल्यू लिख लेते हैं, x1, x2 और x3. तो कितनी कितनी है वैल्यू. पहली वैल्यू है 1.5, फिर है 7, फिर है कितनी 4. इसी तरह एक दूसरा कॉलम बनाते हैं y का. y की वैल्यूज क्या क्या हैं. y1 मीन्स 2, y2 मीन्स 3.5 और y3 मीन्स 7. ठीक है, 2 कॉलम हो गए टेबल के. अब तीसरा कॉलम आता है. तो फाइंड करनी है जैकोबियन. जैकोबियन क्या बिना सेव फंक्शन के फाइंड हो जाएगी, बताओ यस और नो. नो सर. जैकोबियन बिना सेव फंक्शन के फाइंड हो जाएगी, नहीं होगी, है ना. नहीं होगी सर. सबसे पहले आपको निकालने पड़ेंगे सेव फंक्शंस, मस्ट है ना. जैकोबियन के लिए सबसे पहले आपको क्या निकालने पड़ेंगे, सेव फंक्शन. सेव फंक्शन तो क्वेश्चन में दे नहीं रखे, दे रखे हैं क्या, नहीं दे रखे, केवल x और y दे रखे हैं, नहीं दे रखे हैं, है ना. तो फिर हम एक यहाँ पे कॉलम बनाएंगे सेव फंक्शन का, n i, है ना. यहाँ पे xi बोल सकते हैं, इसको yi बोल सकते हैं. i इक्वल टू 1 to 3, है ना. नोट्स है ना, i इक्वल टू 1 to 3. तो x1, x2, x3, y1, y2, y3, ऐसे ही ni मीन्स n1, n2, n3. तो अब n1 की वैल्यू को यहाँ लिखेंगे. तो n1 की वैल्यू कितनी होगी, जरा इस डायग्राम से कुछ पता चल रहा है क्या n1 के बारे में, यस और नो. अभी कुछ पता नहीं चल रहा है ना. तो n1 होता क्या है, n1 का फॉर्मूला क्या है. n1 का फॉर्मूला 3 नोडेड के केस में r होता है, r होगा, s होता है, n3 का t होता है. तो हमें RST वैल्यू पता होनी चाहिए. तो क्या हमें क्वेश्चन में RST वैल्यूज दे रखी हैं, नहीं दे रखी है. क्या RST वैल्यूज निकाली जा सकती हैं, यस. तो RST वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, x इक्वल टू n1 x1 प्लस n2 x2 प्लस n3 x3. तो अब यहाँ x की वैल्यू 3.85, तो एक इक्वेशन बन जाएगी हमारी 3.85 इक्वल टू n1 मतलब r, x1 मतलब 1.5, तो हम लिखेंगे 1.5 r. ठीक है, n2 मतलब s और x2 मतलब 7, तो हम लिखेंगे 7s. n3 मतलब t और x3 मतलब 4, तो हम लिखेंगे 4t. सो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन जाती है. सिमिलरली y का फॉर्मूला यूज करने से दूसरी इक्वेशन बन जाएगी, है ना. ये इस तरह के काम हम कर चुके हैं, कोई आपको नया नहीं लग रहा होगा. बस जैकोबियन तक पहुंचना है टेबल के फॉर्म में, है ना. तो अब y को हम लिख सकते हैं उसी तरह से 4.8 दे रखा है ना ट्रायंगल में. तो y1 हमारा कितना है 2, तो हम लिखेंगे 2r प्लस 3.5s प्लस 7t. ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी. सिमिलरली थर्ड इक्वेशन हमारी हो जाएगी r प्लस s प्लस t इक्वल टू 1. ये थर्ड इक्वेशन जाएगी. इन 3 इक्वेशन की हेल्प से r और s और t फाइंड किया जा सकता है, यस और नो, किया जा सकता है. यस सर. जब आपको r, s और t मिल जाएगा, इसका मतलब आपको n1 मिल जाएगा. तो n1 क्या है, r के बराबर ही तो है, और n2 क्या है, s के बराबर है, और n3 क्या है, t के बराबर है. तो आपको RST मिल जाएगा. तो जरा सॉल्व करके बताइए कि क्या वैल्यू आ रही है RST की. सर इसकी जरूरत पड़ेगी RST की. हाँ, क्योंकि जैकोबियन जब हम निकालते हैं तब डेल एक्स बाई डेल आर करते हैं, तो x इज इक्वल टू जो होता है वो हमारा जो आपने 3.85 लिखा है वहां पे अगर हम x लिख देंगे तो वो बन जाएगा इक्वेशन उसकी. और t की जगह 1 माइनस s माइनस r लिख सकते हैं. तो जरूरत नहीं पड़ेगी RST जैकोबियन निकालने में हमारा पहला टर्म क्या है, डेल एक्स बाई डेल आर है ना. हाँ, टर्म है. तो क्या इस टर्म को आप कैसे निकालोगे ये बताओ, है ना. जरा x की वैल्यू है x बाई डेल आर विल बी डेल बाई डेल आर ऑफ x का फॉर्मूला आप लिखोगे, हाँ x1
प्लस n2 x2 प्लस n3 और लिखोगे ना। N1 और N2 और N3 जो होगा वो RST हो जाएंगे। हाँ, तो n1 की जरूरत पड़ेगी ना आपको। सर RST होंगे लेकिन R की वैल्यू हम पुट नहीं करेंगे ना, क्योंकि डेल R है नीचे, तो हमें हाँ, तो डिफरेंशिएट। वो वन हो जाएगा, है ना, हाँ हो जाएगा। तो थ्री नोडेड ट्रायंगल में तो ठीक है, वन हो गया, है ना, लेकिन हर नोडेड में तो वन नहीं होगा ना। सिक्स, मान लो यही क्वेश्चन 6 नोडेड पे होता है जैकोबियन के लिए, जी सर। है ना, तो फिर उस केस में वन नहीं होता। फिर उस केस में डेरिवेटिव करने के बाद भी आर एस के फॉर्म में चीजें आएगी, है ना, वन नहीं होंगी वहां पर। हाँ तो सर इसमें क्या है कि RST की वैल्यू पुट की है, मतलब N1 की वैल्यू R है तो R पुट किया। अब उसमें क्या होगा, N1 की वैल्यू चेंज हो जाएगी जो कि हमारी R इंटू 2R माइनस 1 है, हाँ, तो आर तो इंटू वो हमें टू आर पुट माइनस करनी वन का जब पड़ेगी। आप डेरिवेटिव करोगे तो हाँ ये हो जाएगा 2r स्क्वायर माइनस आर, है ना, बिल्कुल सर। डेरिवेटिव हो जाएगा 4r और r का हो जाएगा 1। फिर हम पुट कर सकते हैं R की वैल्यू उसमें। फिर इसमें हम r की वैल्यू, तो r एस टी की जरूरत पड़ेगी, मतलब, है ना। हाँ सर, लेकिन इसमें नहीं पड़ेगी क्योंकि हाँ, थ्री नोडेड में मतलब स्पेशल केस है कि वो वन हो रहा है, इसलिए फिलहाल अभी नीडेड नहीं है, है ना, लेकिन निकाल के दिखाना जरूरी है। हाँ जनरल मेथड है ये, ठीक है जनरल सर। मेथड, हाँ जनरल मेथड है ना। तो ये डेल एक्स बाई डेल आर, चलो निकाल के देखते हैं डेल एक्स बाई डेल आर कितना आएगा। तो यहाँ पे तो ये आर है ना। पहले मुझे ये बताओ आर एस टी की वैल्यू कितनी आ रही है इन तीनों को सॉल्व कर। सर R की वैल्यू 0.169 निकाल ली है। हाँ, आर की वैल्यू कितनी है आपकी, 1691। की वैल्यू मेरे पास तो आर की वैल्यू 0.30 आ रही है। सॉल्यूशन आप देखो एक बार, तो गलत होगा। क्रॉस चेक करो। मैं अपने आंसर दे देता हूँ, ठीक है, तो आप ठीक है। क्रॉस चेक कर लो और फिर हम नेक्स्ट क्लास में ज्वाइन होंगे ना अभी 15 मिनट बाद, यस तो सर। उसमें आरएसटी आप बता देना। मैं आप मेरे आंसर्स में लिख देता हूँ, जरा क्रॉस चेक ठीक। करना। आर इक्वल टू आ रहा है 0.301, एस आ रहा है 0.2 और टी आ रहा है 0.5। हाँ, ये आंसर्स है। क्वेश्चंस हमारी हैं 1.5r प्लस 7s प्लस 40 3.85, ठीक है, और 2r प्लस 3.5s प्लस 7t इक्वल टू 4.8 और थर्ड r प्लस, ठीक है। ये सोल्यूशन मेरा है, आप इसको क्रॉस चेक करिए और फिर हम नेक्स्ट क्लास में मीट करते हैं और नेक्स्ट क्लास में फिर हम जैकोबियन को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ओके, सो नाउ आई एम एंडिंग क्लास। थैंक यू।